Hello everyone. This is the subject highway engineering. Unit is fourth. Name is construction of road pavement and material. In in this videos, or we can say with the help of this video or lecture, we conclude a small topic that is test. Test. A name of test is Los Angeles aberration test, which is conducted on test on aggregate. Okay, aggregate test has a important test which is name Los Angeles aberration test. What is the procedure of Los Angeles test? What is the diagram of Los Angeles apparatus? In this lecture, we conclude. This video is short according to the test, that is Los Angeles aberration test. In previous lecture, we conclude CBR test with the help of videos or with the help of a PDF. What is CBR test? California Bearing Ratio test. What are the procedure? What are its significance? What are the value of standard? What are the formulas? CBR is equal to what? We already discussed in our previous lecture. This lecture is fully related to Los Angeles test, which is under the test on aggregate. Now, before we get in it, one notice is please ensure your attendance in comment box, and whatever your queries or question you may ask in live chat, I will answer in that place. But in the period of questioning is in the period of preliminary. Okay, that is when it is with premier line, or you can say the YouTube is premiering, then you ask the question whatever your queries. After that you only comment, and the response is later on. Okay, in your dashboard or in your screen, a machine has shown. This machine is called Los Angeles aberration testing machine, in which one machine is considered, and the part of that is cover plate, and the radius is 3.5 centimeter, steel shelf, and the whole circumference is 12.5 centimeter, or you can 125 centimeter. Next, yes, here it is. Los Angeles aberration test. In order to perform this test, aggregate are placed in a rotating cylinder and subjected to the aberration. मतलब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, कौन से टेस्ट? लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करने के पहले हम क्या करते हैं? एग्रीगेट को हम रख देते हैं किस पे? रोटेटिंग सिलेंडर पे. रोटेटिंग सिलेंडर पे हम क्या कर देते हैं? उस एग्रीगेट को रख देते हैं एंड सब्जेक्टेड टू एब्रेशन. एब्रेशन मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे चीज़ से किसी तीसरे चीज़ पे हम प्रेशराइज कर रहे होते हैं. Abrasion caused by steel balls by rotating the cylinder 500 number of times at the speed of 30 to 33 rpm, after which the sample is then passed through 1.7 mm sieve, and the weight of the particle passing through it is noted, which one expressed in terms of original weight of aggregates represent the hardness in term of the पैरामीटर एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू. क्या मतलब हो गया इसका कि हम अगर शुरू से अगर प्रोसीजर की बात करें तो हमारा जो सैंपल है उसको हम एब्रेशन सिलेंड्रिकल एब्रेशन वाले में डाल देते हैं, जिसमें स्टील बॉल रखे हुए होते हैं. कितने स्टील बॉल रखे होते हैं वो हम आगे बात करेंगे. स्टील बॉल रखे होते हैं और हम उसको रोटेट करते हैं सिलेंड्रिकल को. कितने बार? 500 बार. 500 बार हम रोटेट कर रहे हैं. किस स्पीड में? 30 to 30 rpm, रेवोल्यूशन पर मिनट. मतलब एक रेवोल्यूशन
पर मिनट, मतलब 30 to 33 रिवोल्यूशन पर, एक मिनट में 30 से 33 रिवोल्यूशन होना चाहिए, उतना ही स्पीड हम रखेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पीड रख दिए कि 100 रिवोल्यूशन एक मिनट में कर रहा होता है तो 500 5 मिनट में हो जाएगा, नहीं। 30 से अगर 33 अगर करें तो 30 अगर करें तो 300 रिवोल्यूशन 10 मिनट में, ठीक है ना। बाकी फिर 150 रेवोल्यूशन, मतलब अगर 30 आरपीएम का रखें, 30 आरपीएम का, तो 300 रेवोल्यूशन, 300 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में। और बाकी के 150 कितने होंगे, 5 मिनट में। तो 15 मिनट में मेरा 450 रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 17 से 18 मिनट में, विद इन द 17 to 18 मिनट्स 500 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या 5 नंबर ऑफ टाइम्स, तो 17 से 18 मिनट में हमारा पूरा रेवोल्यूशन हो चुका होगा, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है या स्टैंडर्ड है। आफ्टर विच द सैंपल इज देन पास्ड थ्रू 1.7 mm सीप। सीप मतलब क्या होता है, छलनी, ठीक है ना, जो हमारे इंजीनियरिंग पर्पस में यूज होता है। हर सीप में अलग अलग की जालीनुमा बना हुआ रहता है, या आप बोल सकते हो परफोरेटेड होता है। तो 1.7 वाला ही सीप हम लेंगे, और उसमें उस पाउडर, जो पाउडर है, पाउडर के फॉर्म में तो नहीं, उससे थोड़ा कम क्लिंकर के फॉर्म में हमारे पास आएगा, जो वो रिवोल्यूशन के बाद 500 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के बाद हम उसको 1.7 सीप से पास करवाएंगे। जैसे वो 1.7 सीप से पास किया तो वो क्या हो जाएगा, उसका हम वेट लेंगे, एंड द वेट ऑफ अ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू इट, जो पास किया है उसको हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। इट इज़ नोटेड विच वन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेट। ओरिजिनल वेट अगर बात करें तो जो पास किया 1.7 सीप से, उसी को हम ओरिजिनल वेट कहते हैं ऑफ द एग्रीगेट। रिप्रेजेंट द हार्डनेस इन टर्म ऑफ द पैरामीटर एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, ठीक है ना। तो इस टर्म को, जो हमारे पास 1.7 सीप से पास हुआ और उसको हम वेट किए, तो उस पूरे फेनोमेना को हम लोग पैरामीटर्स को हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर्स एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू हम बात कर रहे हैं उसकी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, फॉर एग्रीगेट्स टू बी यूज्ड फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू मस्ट नॉट बी एक्सीड 30, and for general construction it must not be exceed 50. what is 30, what is 50? मतलब अगर मान लो 30 अगर परसेंट है, ठीक है ना, 30% है, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो 1000 ग्राम हम एग्रीगेट दिए और हम 500 रिवोल्यूशन किए, तो अगर मेरा जो वैल्यू निकला वो अगर 30 ग्राम निकला, 300 ग्राम निकला, ठीक है ना, 300 ग्राम निकला, तो मेरा हो गया वो 30%। किसका, वो 1000 ग्राम के एग्रीगेट का। तो अगर 300 ग्राम अगर मेरा पाउडर फॉर्म में निकला तो ठीक है, जितना कम पाउडर निकलेगा उतना ही ज़्यादा हमारा एग्रीगेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पाउडर निकलेगा, या 1.7 सीप से छन के जितने ज़्यादा पाउडर आएंगे हमारे पास, जिसका हम वेट कर रहे होंगे, तो वो उतना ही कमज़ोर एग्रीगेट है। कैसे, अगर पाउडर ज़्यादा आया तो वो ज़्यादा स्पीड में टूटा, उतना ही टाइम में ज़्यादा स्पीड में टूटा, और ज़्यादा स्पीड में टूटा इन द सेंस वो हमारे लिए, हमारा एग्रीगेट कमज़ोर है एज कम्पेयर टू अदर एग्रीगेट, ठीक है। ये है बॉल्स, 7 बॉल्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 30 to 33 आरपीएम, ठीक है ना। एक्स ग्राम है। डाया ऑफ अ बॉल कितना होता है, 48 होता है, 48 होता है एक बॉल का। ये 1.7 से पास करवा रहे होते हैं। वेट ऑफ अ बॉल कितना हो गया, अगर टोटल 340 से 450 ग्राम का एक बॉल का वेट होता है, ठीक है ना, जिससे टकरा रहा होता है। और वैल्यू कैसे निकालते हैं, y अपॉन एक्स। और y क्या है, y क्या है हमारे पास, 1.7 से जो पाउडर फॉर्म में निकला वो y वेट है, और x कितना है, x जितना दिए थे। जैसे मान लो 1000 ग्राम दिए हैं और 300 ग्राम हमारे पास
पाउडर फॉर्म में आया, तो 300 अपॉन 1000 इंटू 100, दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू। ठीक है, अगर एक बार और देख लीजिए कि किस तरह रोटेट हो रहा होता होगा अंदर में। ठीक है ना, उसके बाद हम उसके चैनल को खोल के हम सारा पाउडर फॉर्म में हो या कंकर के फॉर्म में हो, वो सारा हम लोग निकाल चुके होते हैं, राइट। तो हमने जैसे बताया कि ये वाला जो वीडियो है ये पूरा रिलेटेड है किससे, टेस्ट से, और वो टेस्ट है किस पे, एग्रीगेट पे। एग्रीगेट क्या होता है, एक कोर्स एग्रीगेट होता है, एक फाइन एग्रीगेट होता है, बट लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट इज फुल्ली रिलेटेड या फुल्ली कंसर्न्ड विथ कोर्स एग्रीगेट, नॉट फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट मतलब क्या हो गया, स्टोन्स हो गए। तो हम लोग जब भी एग्रीगेट पे टेस्ट करेंगे और वो भी लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट करेंगे, तो हम लोग हमेशा कोर्स एग्रीगेट पर पे करेंगे, तभी तो हमारे पास पाउडर फॉर्म में आएगा। हम सैंड को कैसे हम विद द हेल्प ऑफ आयरन बॉल के मदद से हम कैसे पाउडर फॉर्म में ला रहे हैं, मुश्किल। ठीक है ना, तो ये पूरा वीडियो हमारा लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट ऑफ एग्रीगेट पे था। ठीक है, थैंक यू।